Okay. The next function for the solid waste management system is the planning of municipal solid waste collection system. It is well after the storage of that municipal solid waste in a waste management system. Waste must be collected on a repeated basis in a week or repeated basis in a day. Once it has been stored at a particular position or particular location, it must be collected on regular basis so that the static values, public health, and other related factors must be uh, maintained or cop up. It is the third functional element of solid waste management system, and we have completed the storage lectures, and today's lecture would be focusing on collection of solid waste from different placements or the locations, and these locations are the same which were selected in the storage section or this functional element for the placement of the containers at different locations, and these are the locations which are providing the interaction between the solid waste management handlers as well as the public. What is the existing scenario in terms of the waste collection in different cities of Pakistan? Lack of planning, monitoring, and evaluation mechanism is prevailing across the country. Inadequate collection and transportation facilities. There are very few resources for the collection and transportation of solid waste from the storage points to the disposal sites. Deficiency of professional staff in the relevant departments. Collection efficiency is around 25% or 30%, and someone would be claiming it's 50% as well. No adequate waste disposal facility. In terms of engineered landfill facility, there is a big gap. और एक और चीज़ इसमें ऐड करता जाऊं कि द कलेक्शन एफिशिएंसी इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब विच आर having their own solid waste management companies is much more as compared to the other areas which are not having the waste management companies. तो जो ये कलेक्शन एफिशिएंसी है मस्ट क्लैरिफाई कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी इससे कई गुना ज़्यादा होगी, फैसलाबाद की इससे ज़्यादा होगी, लाहौर पिंडी की ज़्यादा होगी, इसी तरह बहावलपुर की ज़्यादा होगी, सियालकोट गुजरांवाला की। ये 5-6 सिटीज़ हैं पंजाब में जिनकी कलेक्शन एफिशिएंसी रिलेटिवली 60 प्लस होगी, लेकिन जो बाकी हमारा हम तो पूरे पाकिस्तान और एक ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं ना, इवन साउथ एशियन रीजन भी आप उसमें इंक्लूड करें तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं रादर के वी आर like focusing on one single department or city or the administration or a person. तो हम तो सिस्टम को पढ़ रहे हैं एंड वी आर लाइक लर्निंग के हम अपने सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. एनी साइड ऑफ द country can be observed and can be taken as case study. Similarly, there is absence of containers in the cities, lacking the collection of construction and demolition waste. Heavy machinery चाहिए होती है इसके लिए, तो वो मशीन along main roads are very frequent in all cities. What waste collection is? It is the treatment or landfill final disposal.
ये आपका जो कलेक्शन है, जो आपकी फर्स्ट हैंड स्टोरेज है, वहां से आप इसको जो उठा लेते हैं एंड देन यू इंटेंड टू मूव इट टू द फाइनल disposal site है. This is called as the collection. Waste collection is carried out on daily basis. Collection is done at night to avoid the traffic congestion. Most of the time जो commercial areas हैं वहाँ पे आप रात को ये activity perform करते हैं, because at daytime there is a lot of commercial activity and you won't be hindering the commercial activity, and even the businessmen won't be allowing you to hinder their commercial activities. So the such activities are performed at night so that there is no conflict between businessmen or there is no conflict between the traders and the waste management company. Then comes what is the point of collection? It is the same point which is the point of or which is the location of container selected earlier to place the containers. A location at which the waste passes from the control of generator to the control of collection agency. And मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका वेस्ट जनरेटर, जो इसने वेस्ट जनरेट कर लिया है, उसको उठा के लाके तो स्टोर करता है, और वहां से जो कलेक्शन एजेंसी है वो उसको आके कलेक्ट करती है. तो ये एक इंटरफेस भी है इन दोनों का, आपस में कॉमन पॉइंट भी है. एक यहाँ पे डिस्पोज करता है तो दूसरा वहां से कलेक्ट कर लेता है. इट इज द इंटरफेस बिटवीन द सर्विस रेसिपिएंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर. ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपको और ज्यादा इजीली समझ आ गई होगी. द जनरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क of taking the waste or to the point of collection. There are 3 locations where the waste can be transferred to the collection agency. In the street at a short distance from the generator's property, ये पहला पॉइंट हो सकता है जहाँ पे कंटेनर प्लेस किया जा सकता है. In the street at the property boundary, हर गली में हर प्रॉपर्टी के बाहर एक कंटेनर पड़ा हो. इनसाइड द प्रॉपर्टी, और अगर कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वो elite क्लास है, तो इनसाइड द प्रॉपर्टी देयर कैन बी कंटेनर्स विच कैन बी यूज एज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्ट ऑप्शन में इन द स्ट्रीट जो हम देख रहे थे कि इन द स्ट्रीट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द जनरेटर प्रॉपर्टी, द फर्स्ट टाइप ऑफ द कंटेनर लोकेशन जहाँ से आपने कलेक्ट करना है, इसमें भी 2 तरह के कंटेनर्स की टाइप्स हैं. आगे इसकी फर्दर अपनी इसकी 2 टाइप्स हैं. There are 2 types of collection in the street at a short distance from the generator's property: community containers and blocks collection system. Community containers क्या होते हैं जी? Community collections, sometimes also known as communal containers or street containers. Householders bring their waste to predetermined locations where there is community storage facility. Vehicles visit these sites at frequent intervals, usually once daily or every second day, to remove accumulated waste. Typically, the containers are spaced over 200 meters. तो ये आपके कम्युनिटी कंटेनर्स हो गए जिनके अंदर 200 मीटर्स का डिस्टेंस है. बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? एडवांटेजेस इंक्लूड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कलेक्शन पॉइंट्स, requires relatively low level of service at a low cost. The collection agency is able to collect the waste at any time of the day or that is convenient. अब उन्होंने लोकेशन ही ऐसी सिलेक्ट कर दी है, बट द नंबर ऑफ कलेक्शन पॉइंट्स आर लेस. अब उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो गई, इसी तरह स्टाफ भी कम चाहिए होगा, व्हीकल्स भी कम चाहिए होंगी टू एड्रेस दोज पॉइंट्स. तो बट द नंबर ऑफ ट्रिप्स में इंक्रीज. तो ये एक इसके एडवांटेजेस में आ जाता है. सिमिलरली डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर आप जाते हैं, वेस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड विजिबल ऑन द स्ट्रीट्स, गिविंग द स्ट्रीट्स एन अनटाइडी अपीयरेंस. आप वेस्ट चाहे डेली कलेक्ट करते हैं, लेकिन अब कॉमन पॉइंट है तो वहाँ पे जो वेस्ट थ्रो करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो जब वो बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक की अपनी टाइमिंग है, वो किसी भी वक्त आके फेंक सकता है वहाँ पे वेस्ट. तो इस वजह से वहाँ पे लगता है कि कलेक्शन होती ही नहीं, हर वक्त वेस्ट वहाँ पे आपको नजर आता है, एंड एस्थेटिकली इट इज नॉट गुड लुकिंग. देयर कैन बी अ परसीव्ड हेल्थ थ्रेट, ओडोर प्रॉब्लम्स, प्रेजेंस ऑफ डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स एंड अदर वेक्टर्स एज वेल. तो ये ऑब्वियसली जब वहाँ पे वेस्ट होगा तो ये चीज़ें तो होंगी. बर्निंग ऑफ वेस्ट इन कंटेनर्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम.
ये भी लोग वहाँ पे कर देते हैं, वैल्यूएबल मटेरियल को निकालने के लिए वहाँ पे आग लगा देते हैं। फिर इसी इन द स्ट्रीट में जो दूसरी टाइप थी ब्लॉक कलेक्शन, a collection vehicle travels a predetermined route at prescribed intervals, usually every 2 to 3 days, and stops at selected locations where a bell is sounded. Upon hearing the signal, the householders bring their refuse to the truck and hand it over to the crew, who empty the containers and pass them back to the householders. अब होता क्या है कि एक गाड़ी जो रिलेटिवली लार्जर कैपेसिटी की है वो एक प्री डिटरमिन्ड रूट जो उसका सिलेक्टेड है उसमें आती है और डिफरेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स पे वो स्टॉप करती है, और लोगों को पता होता है कि इसने इतने दिन के बाद इतने बजे हमारे पॉइंट पे आना है, जैसे वो आपके रूट्स चलते हैं। तो वहां पे वो अपना वेस्ट खुद लेके पहुंच जाते हैं और हैंड ओवर करते हैं टू दी सेंट्री वर्कर, और वो उस व्हीकल में एम्प्टी करने के बाद उनकी बिन उनको वापस कर देता है एंड ही मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे ये एक्टिविटी होती है और इस तरह करके वेस्ट कलेक्शन को जो है वो इंश्योर किया जाता है। इसमें आपको कंटेनर्स नहीं रखने पड़ते सिस्टम में। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नो कंटेनर्स आर vehicle and labor productivity of this system lies between low and waste cannot be collected at any time of the day or night। अब वो जो आपके पास लिबर्टी कम्युनिटी कलेक्शन में थी वो इसमें नहीं है, क्योंकि अब आप हर वक्त गाड़ी लेके उधर नहीं पहुंच सकते। आपने जो लोगों को टाइम बताया हुआ है उसी पे ही आपने जाना है। देयर इज अ फिक्स टाइमिंग एंड इफ द टाइमिंग इज नॉट फॉलोड देन वेस्ट विल बी लेफ्ट आउट इन द स्ट्रीट। तो अगर कलेक्शन वालों की तरफ से बंदा नहीं पहुंचा तो तब भी वेस्ट वहीं पे पड़ा रहेगा, और अगर वो जनरेटर वहां पे लेके नहीं पहुंच सका फॉर सम रीजंस तो तब भी वेस्ट तो वहीं पे वहीं वहीं का वहीं रहा। तो इसमें कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू दी अदर टाइप ऑफ कलेक्शन सिस्टम। देन कम्स दी एट द प्रॉपर्टी बाउंड्री। अब वो जो एक स्ट्रीट में एक कॉमन कंटेनर देने की बजाय अब आप प्रॉपर्टी बाउंड्री पे कंटेनर दे रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज कर्ब साइड कलेक्शन। The collection crew collects waste in bins, bags, and other containers which have been left at the roadside. In some places, the waste is just left in a pile, requiring considerably more effort from the collection service. The residents and shopkeepers must be informed beforehand about the days on which collection will take place so that they can put out their waste in time for collection. This system requires a very regular and well organized collection service so the householders know when to put out their waste. This is curbside collection or the containers provided at the boundary wall. अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर लूँ, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर ये आपको मैं वो डेटा शेयर करता हूँ। Advantages include quickest and economical, less number of crew is required, no need of entering the property. Disadvantages include increased incidents of scattering of waste by waste pickers and animals, increased risk of containers stealing, etc. तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं in terms of different scenario in curbside collection system। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डोर टू डोर कलेक्शन है और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाउस एंड नंबर ऑफ बैग्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रावलपिंडी का डेटा है आपके पास। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स के अगेंस्ट कितने गार्बेज बैग जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फॉर द डोर टू डोर कलेक्शन, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 2014 टू 2015 द इंटायर ईयर। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हाउस होल्ड जो डिफरेंट हैं उनमें कौन से मंथ में ज़्यादा गए हैं, कौन से मंथ में कम गए हैं। तो वो मैंने एक रिलेटिवली जनरल आपको एक असाइनमेंट मैंने दी थी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। तो उसका मैंने ये आपके साथ शेयर करना चाहा ताकि आपको थोड़ा सा रियल आइडिया भी हो जाए। इसी तरह हम वेस्ट की कलेक्शन एफिशिएंसी को, कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन को, इसी तरह आपकी जो मेंटेनेंस है जिसमें हम कंटेनर्स की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, टायर्स कितने आए, फ्यूल कितना आया, माइलेज कितनी है, आपकी हर चीज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे चलती है। मतलब उसमें मे बी इट्स लाइक कि आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल लग रहा हो,
लेकिन उसका आपको अगर आता भी है तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने का पर्पस ही यही है कि उसको लिंक कैसे करना है विद योर कोर सब्जेक्ट। अदरवाइज तो वो आपका, आप फिर किसी ट्यूशन होता है। ठीक है, तो इसलिए एकेडमी में ये बेहतर है कि उसको आप जेन्युइन जो आपके कोर्स के साथ लिंक करें, और उन टास्क्स को आप एज ए इंजीनियरिंग टास्क समझें, रादर कि आप ये कहें कि ये तो बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हैं। मसला ये नहीं है कि वो अब बच्चों वाले, हमारी कमांड ज़्यादा हो गई है, लर्निंग ज़्यादा हो गई है, तो इट्स गुड थिंग रादर कि हम उसको समझें कि यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो चीज़ आ जाए वो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि अगर आपको आती है तो यू मस्ट बी केपेबल इनफ टू यूटिलाइज दैट थिंग और टू एड्रेस दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बेनिफिट। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपकी कि आपने कितने गार्बेज बैग प्रोवाइड किए हैं टू दी कम्युनिटी फ्रॉम नवंबर 2014 टू अगस्त 2015। ठीक है, तो ये आपको 6000 यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। ये 6000 एक मंथ में गए हैं, 6000 ये फ्री में नहीं आए होंगे, ऑब्वियसली देयर इज सम कॉस्ट ओवर दीज गार्बेज बैग्स। यहाँ पे 2000 गए हैं, 4000, 5000, 6000, 3000, ये आप कंसीडर करें तो आपके पास ये कितने हो गए हैं? 9000, 13000, अगेन 4000 ये है, तो 17,000, 23,000, 28, and similarly 35,000 garbage bags have been distributed in entire year। ये हाउस होल्ड को सिर्फ लिखे हुए हैं यहाँ पे, कमर्शियल मार्केट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही बता रहा है। अदरवाइज फिर आप बैठ के उधर बिल देखते और कहते कि अच्छा ये कहाँ गए सारे, और ये किधर गया सारा, इतना पैसा इसमें खा गए हैं, इसमें लग गया पैसा, ये तो करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये आपके सामने है ये चीज़ें कि हाउस होल्ड कितने थे, और हर हाउस होल्ड को ऑब्वियसली आप 10 देंगे, 15 देंगे, 50 देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी वेस्ट जनरेशन कैलकुलेशंस। तो उसके हिसाब से आप जब उसको प्रोवाइड करेंगे तो ये सारी आपकी वैल्यूज जो हैं वो उस हिसाब से बढ़ेंगी। देन कम्स द सीजनल वेरिएशन, कि हो सकता है कि जून 2015 में रमज़ान मुबारक हो, इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसी डोमेन में रमज़ान मुबारक हो सकता है। तो देयर देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्ट जनरेशन इन दैट मंथ, तो इस वजह से भी ये राइज कर सकता है। तो ये सारा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आप एनालाइज करें डेटा को, आप डेटा के साथ खेलें, कि आपके डेटा की आपको कमांड हो, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो सारा सिस्टम। आपको पता हो कि आपकी ये व्हीकल इतने माइलेज के साथ चलती है, तो इसको आप 500 व्हीकल्स और हैं, आप उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ ही आप कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयर? या हर एक का नंबर नंबर प्लेट याद रखेंगे कि अच्छा जी ये नंबर प्लेट है तो इसकी माइलेज इतनी है, ये नंबर प्लेट है तो इसकी माइलेज इतनी है। व्हाट इज द एवरेज माइलेज ऑफ इंटायर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स व्हीकल्स? तो वो कोई पता नहीं है जनाब। तो सबसे वर्स्ट क्या है जी, नहीं पता। सबसे एफिशिएंट क्या है जी, नहीं पता। तो ढूंढते रहें वो सही है, या इस तरह आपके सामने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो और आप उसको एनालाइज कर रहे हो और आपके सामने सारा डेटा हो, whoever wants to discuss और whoever wants the accountability, आप उसके सामने ये प्रेजेंटेशन रखें, उसको बताएं कि ये चीज़ें हमने इस तरह की हैं। ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें घरों में जाके अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक रेजिडेंशियल एरिया में, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से जस्टिफाइड होंगी? इसी तरह से होंगी ना जब आपके पास डेटा होगा। और ये डेटा कब होगा? जब आप इसमें पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे, जो लोग पढ़े लिखे भी हों, इस डेटा को, इसकी वैल्यू को भी समझते हों। फिर ये भी ना हो कि पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, मतलब पढ़ तो गए हैं लेकिन मेंटेलिटी फिर उनकी वही है कि यार ये चीज़ का इसमें अलग है। तो आप थोड़ा सा इंटेंशंस जो हैं वो अगर रखें इसमें अपने सिस्टम में, लर्निंग में, तो आपकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, रादर कि आप इसको फजूल चीज़ समझें।
Moving on to the third type of the waste collection system, which is the inside the property. Inside the property, collection of waste can be done in two ways. For example, backdoor collection as well as collection from the apartment buildings. ये दोनों भी अब इनकी दोनों की अपनी जो डिटेल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल. Backdoor collection comes when the system requires residents to do no more than to store their waste in their yards at their back door. अब इसमें जो वेस्ट जनरेटर है, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ सर्विस किस तरह से बढ़. पहले आपने कहा कि हम गली में कंटेनर कहीं दूर बना देंगे, वहां पे आप जाके फेंक के आ जाएं, हम खुद वहां से कलेक्ट कर लेंगे. तो आप वो स्टोरेज पॉइंट है, आप डायरेक्टली एक दूसरे को जानते नहीं है. फिर आपने कहा कि नहीं, हम एक गाड़ी भेजेंगे, जब गाड़ी प्री डिटरमिन्ड रूट पे आएगी और वो आगे वेस्ट कलेक्ट करके जाएगी, तो वहां पे आपका इंटरफेस होना. बट द कलेक्शन पॉइंट वाज नॉट फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ कंटेनर प्लेसमेंट, रादर इट वाज जस्ट हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर ऑफ वेस्ट फ्रॉम वन साइड टू अदर. अब ये सिस्टम कहीं पे आप चला भी सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सिस्टम की तरफ जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन भी चल सकता है. कोई ऐसे एरियाज हैं, हाई इनकम एरियाज हैं, वहां पे आप ये सिस्टम चला सकते हैं प्री डिटरमिन रूट वाला, तो लोग वहां पे उनके मुलाजिम जाएंगे वेस्ट, वहां पे मुलाजमी नहीं. हमारे सिस्टम में तो लाजमी नहीं पकड़ा जाएंगे ना वेस्ट, अगर हम बात कर रहे हैं अपने. अदरवाइज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो रेजिडेंट्स खुद आके वेस्ट अपना जो है वो हैंड ओवर करते हैं. तो वो हो सकता है, लेकिन कुछ कंजेस्टेड एरिया में आपको वो स्ट्रीट के एंड पे वो बनाना पड़ सकता है कंटेनर, ठीक है. तो उससे लेवल ऑफ सर्विस जो है वो एज कंपेयर टू यहाँ पे ज्यादा है, कि यहाँ पे आप उनके प्रॉपर्टी इनसाइड दी प्रॉपर्टी जा रहे हैं और वहां से वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. इस कलेक्ट फ्रॉम इनसाइड दी प्रॉपर्टी और व्हीकल जो है उसमें आप डिस्पोज ऑफ करते हैं. Advantages and disadvantages of residents to go to the point of collection and throw the waste. It saves the time of the waste generator, saves effort for waiting the vehicle. Disadvantages include increased labor cost for entering all premises. अब लेबर ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है. हर घर के अंदर जाके वेस्ट एक की बेल बजाई है तो वो जनाब निकले ही नहीं है बाहर, दूसरे की बेल बजाई है तो वो घर पे नहीं है, उधर टाइम वेस्ट किया, तीसरे की बजाई है तो उनका वेस्ट कंटेनर में नहीं है या बिन में नहीं है, उनका वेस्ट जो है वो सारा बिखरा पड़ा. मतलब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन ह्यूज सेट ऑफ पॉपुलेशन. तो उसमें फिर आपको लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर भी बढ़ जाएगी. मे रिजल्ट इन इंट्रूजन ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. आपकी प्राइवेसी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी, सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी. कलेक्शन इज इनफ्रीक्वेंट, टिपिकली वंस पर वीक, बट यहाँ पे सर्विस जो है वो डेली आप नहीं देते, बल्कि आप ये इनफ्रीक्वेंट कलेक्शन सिस्टम है आपका. Collection from apartment buildings, there are two further options for multi-story building, apartment buildings: storage outside or at the ground floor, and vertical refuse collection vehicles. Waste can be collected by the collection service. Waste must be brought to these containers by the residents themselves or by the caretaker of the buildings. Vertical refuse chutes have openings on the each floor so that residents can put their waste into the chutes so that it drops into containers at ground floor. They must have smooth interiors, be always used in a disciplined way, and be cleaned regularly. Waste collection at residential dwellings, low resident rise dwellings में किस तरह से है, मीडियम राइज dwellings में क्या है, और हाई राइज dwellings में क्या है. कराची वगैरह की बात कर लें, आप सिंगापुर की बात कर लें. सिमिलरली टोक्यो, शंघाई, बीजिंग, न्यूयॉर्क, ये हाई राइज बिल्डिंग्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है. So, low-rise dwellings में waste is stored at home in a variety of containers. 90 gallons liters equipped with wheels are also used for the waste. The type of containers depends upon whether separation is mandatory or not. Residents are responsible for transporting the container waste to the collection point.
If no separation at home, then recycling is done at a material recovery facility or municipal recycling facility. दोनों जो है MRF ही कहलाती हैं. तो वहाँ पे भी आप सेग्रीगेशन कर सकते हैं लो राइज बिल्डिंग्स में, जहाँ पे सिर्फ आप कंटेनर में ही वेस्ट को इकट्ठा करके रखते हैं. देन कम्स दी लो एंड मीडियम राइज अपार्टमेंट्स. बेसमेंट में स्टोर कर सकते हैं या आउटडोर स्टोरेज हो सकती है. बेसमेंट स्टोरेज बाय रेजिडेंट्स एंड मूविंग ऑफ द कंटेनर बाय मेंटेनेंस पर्सोनल. स्टोरेज जो है वो रेजिडेंट्स खुद करेंगे और जो कलेक्शन है वो क्रू करेगा. लार्ज आउटडोर कंटेनर्स लोकेटेड इन स्पेशल एरियाज दैट आर एम्प्टीड मैकेनिकली बाय द कलेक्शन ट्रक. Similarly, high-rise apartments and maintenance personnel or porters pick up the waste at the apartment door and take to the basement service area. Vessels on each floor, usually circular, are placed specially designed vertically with openings located at each floor. Main accessories are intake baffle, intake door, door locks, sprinklers, disinfection system, sound insulation, and roof vents as discussed earlier. ये वो वेसल्स और वो कलेक्शन सिस्टम फॉर द हाई राइज बिल्डिंग्स जो शूट्स सिस्टम है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था. Vertical refuse vessels are having the advantages of no need of residents to travel multi-story building and throw the waste. It saves their time, saves efforts of waiting for the vehicle. Similarly, can be problematic as we are discussing its disadvantages. Requires high maintenance, can provide place for breeding to cockroaches, flies and other rodents. फिर आपके पास कंपैरिजन आ जाता है इन सारी सर्विसेज का. पहले आपके पास था कि स्ट्रीट के एंड पे आप एक कंटेनर रख देते हैं. फिर आपने कहा कि नहीं, ब्लॉक कलेक्शन सिस्टम है जिसमें गाड़ी आएगी और उनके हाथों से वेस्ट को कलेक्ट करके चली जाएगी. फिर आपने कहा नहीं, हर प्रॉपर्टी के बाहर जो है वो एक कर्ब साइड कलेक्शन सिस्टम हम दे देते हैं. फिर आपने कहा नहीं, इनसाइड दी प्रॉपर्टी हम चले जाते हैं. तो ये लेवल ऑफ सर्विस आप इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो कॉस्ट है वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपकी बढ़ रही है. लेवल ऑफ सर्विस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, कॉस्ट बढ़ेगी. अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप इनको चेक कर रहे हैं. फैक्टर क्या हो सकते हैं? पहला फैक्टर है हाउस होल्ड कोऑपरेशन इन कैरिंग रिफ्यूज बिन्स और बैग्स. अब हाउस होल्ड का कितना कोऑपरेशन है कलेक्शन एजेंसी के साथ, वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं. उसमें तीनों में यस है कर्ब साइड तक, लेकिन यहाँ पे नो है जहाँ पे इनसाइड द प्रॉपर्टी आप चले गए, वो उसको नहीं हाथ लगाते. हाउस होल्डर कोऑपरेशन इन एम्प्टीइंग रिफ्यूज बिन्स, तो इसमें वो खुद एम्प्टी करता है, इसमें ऑप्शनल है ब्लॉक कलेक्शन में. और कर्ब साइड में वो नहीं करता, यहाँ पे स्टाफ को करना पड़ता है, यहाँ पे भी स्टाफ को करना पड़ता है. नीड फॉर शेड्यूल्ड सर्विस से शेड्यूल नहीं है, आप कभी भी आके कलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है. इसमें आपका शेड्यूल होना चाहिए. इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है शेड्यूल की. एक्सेस टू द वेस्ट, जो स्कैवेंजर्स हैं उनकी एक्सेस क्या है वेस्ट की, इसमें वेरी हाई है क्योंकि इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है. ये एक साइड पे है, आउटसाइड स्ट्रीट है, और एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है, तो ये एक पोटेंशियल उनके लिए जगह है. इन बाकी तीनों में जो है उसमें कर्ब साइड में भी इवन वो आके स्कैवेंजिंग कर सकते हैं, बाकी दोनों में नहीं कर सकते. Average crew size for all these type of collection systems includes the 1 to 2 for portable community container और 2 to 4 for stationary. 2 to 4 इस वजह से है कि इसमें वेस्ट जो है वो मैनुअली भी आपको फिर करना पड़ेगा. पोर्टेबल तो मैकेनिकली खाली हो जाएगा, इसको मैनुअली करना पड़ेगा. इसमें 1 to 2 है, कर्ब साइड में 1 to 4 है, इसमें 2 to या नहीं हो सकता.
All right, the connection has been restored. Anwar, can you listen me? Please indication दे दें so that I can start the lecture once again. Hello, Anwar. Okay. And the lecture is not being shared, yes. I think it's visible now. After comparing all the collection methods, we would be moving on to the pictorial views of the collection methods, जिसमें आपके पास direct collection है, two stage collection and three stage collection है. And I would request you to not mix or confuse these collection systems with the transportation. ये सिर्फ आपको collection के point of view से मैं समझा रहा हूँ. ट्रांसपोर्टेशन का हमारा अलग से चैप्टर होगा और अलग से हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये कलेक्शन है कि आपने डायरेक्ट कलेक्शन की व्हीकल जाके डिस्पोजल साइट पे उसने एम्प्टी हो गई. टू स्टेज कलेक्शन में आपने व्हीकल जाके लार्जर व्हीकल में एम्प्टी हुई और लार्जर व्हीकल जाके डिस्पोजल साइट पे हुई. थ्री स्टेज जो कलेक्शन है उसमें आपकी हैंड कार्ट से आप गए हैं, आपने कंटेनर में की है, कंटेनर व्हीकल में हुआ, व्हीकल जाके फिर आगे बड़ी व्हीकल में, और दैट इज गोइंग टू द डिस्पोजल साइट. तो इस तरह से ये स्टेजेस आपकी डेवलप हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी locality of the waste collection system, similarly depending upon the availability of resources and the site distance of disposal site distance from the locality. उसके हिसाब से फिर आपको उस टाइप की जो है वो कलेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करनी पड़ सकती है. और ये सारी बात ऐसे मतलब इसको सिर्फ अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप बाद में भी इवन मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं. अगर मैं ये सिर्फ एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये हम फॉर एग्जांपल ये हमारी लोकेलिटी है, ये पूरे सिटी का मैप है जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया फॉर एग्जांपल, एंड योर डिस्पोजल साइट इज लाइंग समवेयर हियर. ठीक है, ये आपकी डिस्पोजल साइट है. अगर ये डिस्पोजल साइट है और ये आपका सिटी है, तो इसमें अब ये तीनों कलेक्शन सिस्टम किस तरह से आप ये तीनों कलेक्शन, डायरेक्ट कलेक्शन, टू स्टेज कलेक्शन, थ्री स्टेज कलेक्शन, किस तरह से आप इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं. आई वुड एक्सप्लेन दिस मेथड इन टर्म्स ऑफ हैविंग, फॉर एग्जांपल आप यहाँ इस पॉइंट से कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट को, तो आपका वेस्ट जो है, आई मस्ट शेयर दी एरो ओवर हियर रादर देन, अगर तो इस पॉइंट से आप कर रहे थे, ठीक है, अगर इस पॉइंट से आप कलेक्शन कर रहे थे और ये पॉइंट आपका वेरी नियर टू दी, और द लास्ट पॉइंट था आपका इन टर्म्स ऑफ सिटी बाउंड्री, आप इस जगह से, इस सेगमेंट से आप जो है वो कर रहे थे, अगर कुछ वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करना चाह रहे थे, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये वाला रीजन जो है इसमें से डायरेक्ट कलेक्शन भी आप कर सकते हैं कि आपने इस रीजन से उठाया वेस्ट को और इस वेस्ट को लेके आप डायरेक्ट स्टोरेज की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ से आपका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है. मैं इसकी एग्जांपल रियल स्केल पे अगर दूँ, तो अगर आप इस्लामाबाद की बात करें और इस्लामाबाद जो है वो उसके डिस्पोजल साइट जो है वो अगर आप कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आईजेपी रोड पे आई-12 जो है वो उसकी डिस्पोजल साइट है, तो उसके साथ के जो सेक्टर्स हैं, आई सेक्टर्स जितने भी हैं, उनसे तो डायरेक्ट व्हीकल जा सकती है रादर के वो टू स्टेज की तरफ जाए. ठीक है, सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा जो विसिनिटी है वो मिडल ऑफ द सिटी है, तो मिडल ऑफ सिटी में आप टू स्टेज कलेक्शन सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे टू स्टेज हो सकता है, थ्री स्टेज भी हो सकता है. थ्री स्टेज किस तरह से कि आपने कंजस्टेड एरिया से कलेक्ट किया थ्रू दीज टाइप ऑफ कलेक्शन मैकेनिज्म और उसको कंटेनर में एम्प्टी किया, कंटेनर व्हीकल में हुआ, व्हीकल बड़ी व्हीकल में हुई और फिर वो आगे चली गई. तो इसी तरह से अगर आपका फार अवे एक
सेटअप है, जो ये रीजन आपका सारा लाई कर रहा है, आपके क्या कहते हैं, आपका जो है कलेक्शन सिस्टम है, तो उसमें अगर ये सिटी का ये वाला पोर्शन जो है, या अगर आप इसी के साथ अगर बात करते हैं इस पोर्शन की, तो इन दोनों रीजन्स को इस डिस्पोजल साइड से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत दूर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर इनके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपको इसमें डिफरेंट कलेक्शन सिस्टम के कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स। तो इस वजह से ये जो डायरेक्ट स्टोरेज है, कलेक्शन है, 2 स्टेज कलेक्शन है, 3 स्टेज कलेक्शन जो है, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन इन अ सिंगल सिटी। ऐसा नहीं है कि वन सिस्टम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द सिटी, और उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है, तो कुछ हो नहीं सकता, यही चलना है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं। ये कंटेनर्स की टाइप्स हैं, इनको ब्रीफली हम देख लेते हैं कि ये मेसनरी स्ट्रक्चर है, या अगर ये मॉइस्चर कंटेंट वाला कोई पोर्टेबल कंटेनर था, तो अब इसको इवन एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाने के लिए खाली करना तो बहुत दूर की बात है, इसके लिए आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे इसको खाली करना मुश्किल है, स्कैवेंजिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आग लगा देंगे लोग, कूड़ा बाहर बहुत ज़्यादा पड़ा होगा, तो ये थोड़ा सा इसका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस सेंस में इसके डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे फिर एस्थेटिक्स भी अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि आप इसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे। ऐसे पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे आपके कंटोनमेंट में, सिटीज़ में, आप पूरे शहर में, तो फिर आप उनको उनकी एस्थेटिक्स भी अच्छा नहीं रख सकेंगे। सिमिलरली ये कंटेनर्स की मटेरियल सिलेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, एक तो कवर्ड होने चाहिए, ओपन लिड नहीं होने चाहिए, फिर उनकी रस्टिंग का, उनके व्हील्स के टूटने का, और ये सारी बॉडी फ्रेम उसके किस तरह से आप रखते हैं। इसी तरह से व्हील वाले कंटेनर को आपने लोकेशन आप देखें कि आपने उसको ऐसी जगह पे रख दिया जो पेव्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भरे हुए कंटेनर को, व्हील वाले कंटेनर को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे पेव्ड एरिया है, लेकिन आपने व्हील कंटेनर नहीं रखा, आपने वैसे ही दूसरा कंटेनर रख दिया, अब ये भरा हुआ कंटेनर यहाँ पेव्ड एरिया में हिलाना मुश्किल हो जाएगा इसको। ठीक है, तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विच मस्ट बी कंसीडर्ड, और उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर टू look in these containers as the waste heaps, or just passing by these containers by putting the cloth on your nose, और जल्दी से वहां से गुजर जाने को सिस्टम नहीं कहते, बल्कि आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा, और यू हैव टू मैनेज दिस सिस्टम। अदरवाइज in previous 70 years we have piled up our country with a lot of waste, and now that is hitting back us to the different levels। और इवन अब तो हमारी जो एक्सट्रीम, जो इवन मैंने सुना है कि लास्ट ईयर जो मानसून गुजरा है उसमें डीएचए भी चोक कर गया था कराची में। ठीक है, तो दैट वाज ड्यू टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इनएफिशिएंसी। आपने सारे सिस्टम को चोक कर दिया है, तो अब आप चाहे पहले अगर कच्ची आबादी में पानी खड़ा होता था, तो ऑब्वियसली आफ्टर द इमेंस ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेजेस वो मूव करेगा, इट बैक करेगा टू दी एलीट क्लासेस एज वेल। देन कम्स दी वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एक अलग सेक्टर है। लेट मी